We have to do the introductory part of it today. So these would be the content which we'll be going through today. So we'll cover the introduction and what are the basic financial management decisions. And if we get time, then we'll be covering objectives, stakeholders concept also, job of financial manager, and organization of finance function as well. Let me check the recording function once. It was not working yesterday. Let me check it again. Give me a second. Recording in progress. Done. So the contents we have discussed. Moving on. Yes. So all business activities result in some type of financial implications. We all know that business का मतलब ही यही होता है that we want to earn some profits for it. ठीक है? अगर if there is any business, let's say XYZ, and it is not resulting in any kind of financial profits or losses, then it's basically a charity. ठीक है? आप business कर रहे हो so that वो result करे किसी financial implication में. Financial implication का यहाँ पे it does not only imply that कि हमें profits हो रहे हैं. No, businesses can result in losses also. तो यहाँ पे financial implications का मतलब it is covering the profits as well as the losses, both of them. ठीक है? So any kind of business result in financial implications, whether it's profit or those are losses. Major areas where financial implications are there. The areas are financial services and financial management. अभी हम लोग ये बाद में discuss करेंगे. Like financial management is basically our what is the subject is, and financial services is another stream of finance which covers your factoring, leasing, and etc. ये आपके graduation में नहीं आता. Financial services is mainly आपका masters का thing. ठीक है? So according to Dr. S.N. Maheshwari, financial management is concerned with raising financial resources and their effective utilization towards achieving the organizational goals. Right? Let's break this definition down. So if you notice, the definition is saying it is concerned with raising financial resources. So the number one point is, if we need funds for the business, then we have to decide where those finances would be arranged from. आपको debt लानी है या फिर आपको equity से raise करना है, आपको maybe bank loans लेने हैं, तो basic जो financial resources की need है वो आएगी, वो fulfill कहाँ से होगी? What would be the source of raising those financial resources, right? So this is number one concern, that is raising of financial resources and their effective utilization towards achieving the organizational goals. That is कि आपने finance raise तो कर लिया, आपके पास अब finance है कंपनी में, अब उसको utilize कहाँ करना है? Okay, right? So we are concerned with both the things कि finance आएगा कहाँ से and उसका use क्या होगा. This entire management of the entire thing, that application as well as raising of finance, is basically a financial management. So let's see it in an equation form. आप लोग को accounting equation याद है? That was assets equals to liabilities plus capital. Yes. So if we break this definition down, assets आपके क्या होते हैं? Assets are either your non-current assets या फिर working capital. Current assets होंगे या फिर non-current assets होंगे, right? And liabilities plus capital. Liability क्या होती है? Debt is your liability and capital क्या होती है? Equity, जो owners के fund होते हैं, right? So we have broken this equation down, and so this part, the asset part, is the application of funds, and the debt plus equity portion is your sources of fund.
ठीक है. एंड ये दोनों को जो हम कंबाइन करेंगे, दैट इज सोर्सेज ऑफ फंड्स प्लस एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, इनका मैनेजमेंट इज बेसिकली और फाइनेंशियल मैनेजमेंट. ठीक है. सो जो भी आप डेट रेज कर रहे हो या फिर इक्विटी रेज कर रहे हो या फिर दोनों रेज कर रहे हो, so these funds would be applied to either in the working capital or for the non-current assets, right? आप लोगों को बेसिक जिस्ट समझ में आ गया कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है? वेरी गुड. लेट्स मूव ऑन. दिस इज द बेसिक डेफिनेशन, राइट? ओके. So coming on to the financial management decisions, these are the important decision. So if you sit for an interview, ये question आपसे पूछा जा सकता है कि what are the three financial management decisions, या फिर आपके MCQ में आ सकता है. ये सबसे एक होता है ना किसी सब्जेक्ट का एक बेस, ये सब पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बेस है, these financial management decisions. इसी में like आपका कवर्ड होगा the entire syllabus on these three decisions. Okay, I've got a question. Okay, I'll repeat it again. Don't worry. Is this the slide you're talking about, Samyak? Samyak, are you talking about this slide? Do I need to repeat this slide? कब तक आ रहा है फिर खाना? आराम तो करनी रही, बना रही हूँ, जब बन जाएगा आ जा. Okay. So बच्चे अकाउंटिंग इक्वेशन हम करते थे ना, अकाउंट्स में हमने बेसिक से पढ़ा था दैट एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. ठीक है. अगर हम लोग एसेट्स को बाइफरकेट करें तो हमारे एसेट्स कितने टाइप के हो सकते हैं? Either it would be non-current assets or your working capital. ठीक है. या तो current assets होते हैं या फिर non-current assets होते हैं. So basically your asset portion is your application of funds and the liabilities plus capital. Okay, हमने previous semester में ये पढ़ा था जब हम लोग debt और equity की बात कर रहे थे, that liabilities क्या होती है? That is borrowed fund, कि हमने किसी से पैसा लिया हुआ है, and debt हमारा क्या होता है? Borrowed fund, right? So liabilities आपकी क्या होंगी? Debt, right? And capital क्या है? Equity. Capital क्या होता है? Owners fund ना? So that is why we can say that capital is our equity. ठीक है. तो we have bifurcated that liabilities plus capital into debt plus equity, right? And this would form our sources of fund. Sources as in कि यहाँ से हम अपने फंड्स को रेज कर सकते हैं. अगर मुझे किसी कंपनी के लिए फंड्स चाहिए, मेरे पास दो ऑप्शंस है ना, या तो मैं पैसा बाहर से लूंगी, either I will raise it through debt, या फिर मैं I will use my own money in the form of capital or equity fund. So these are the sources of fund, right? And जो भी मैंने ये funds को raise किया है through these sources, I would have like raised these funds for a reason, right? कि मुझे लग रहा है कि कोई investment opportunity आने वाली है, या फिर मुझे किसी asset को buy करना है, या फिर मुझे day to day running of the business के लिए पैसा चाहिए. So this would form the application of funds, कि मैंने जो funds raise किए हैं through the sources of funds, अब मैं उनको apply कहाँ कर रही हूँ? ठीक है. And apply कहाँ होगा? Either it would be in the non-current assets or it would be in working capital. Is it clear now? Perfect. So students, can you tell me if I'm going too fast, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? Do I need to slow down my speed? Okay. Okay. ठीक है. So we were on financial management decisions. So financial, मैंने आप लोगों को बताया financial management decisions are the
सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजंस एंड इसी पे आपका पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेस्ड है ऑन दीज 3 डिसीजंस. We'll be studying them in detail in the next few slides. So ये 3 decisions है क्या? These are investment decisions, financing decisions and dividend decisions. And these 3 combine to make financial decisions. ठीक है? Financing and financial दोनों में डिफरेंस होता है. अगर क्वेश्चन आता है that write about financial decisions, so you have to explain all the 3. ठीक है. एंड अगर क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन फाइनेंसिंग डिसीजन, तो आपको सिर्फ ये वाला एक्सप्लेन करना है. ठीक है. दोनों को इंटरचेंजेबली यूज मत करना, दोनों का मतलब इंटायरली डिफरेंट होता है, फाइनेंशियल एंड फाइनेंसिंग का. ठीक है. ओके. Coming on to the investment decisions, so basically you have to decide जो भी आपके पास फंड्स रेज हुए हैं, whether you have to apply it to fixed assets or working capital assets. ठीक है. जो भी हमने फंड्स रेज किए थ्रू डेट या फिर इक्विटी, वो हम लोग फंड्स को इन्वेस्ट कहाँ करेंगे. ठीक है. अब अगर हमें इन्वेस्ट करना है, या तो हम लोग फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करेंगे या फिर हम लोग वर्किंग कैपिटल एसेट्स में इन्वेस्ट करेंगे. ठीक है. प्रॉब्लम तब अराइज होती है जब पॉइंट आता है कि हमारे पास कितने फंड्स हैं. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से हमारे पास 1 लाख रुपीस थे और हमने 1 लाख के 1 लाख टोटली फिक्स्ड एसेट्स में लगा दिए और वर्किंग कैपिटल में नहीं लगाया. सो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाएगा, राइट, कि अगर सारा पैसा मैंने फिक्स्ड एसेट्स में लगा दिया और वर्किंग कैपिटल में नहीं लगाया, तो आई वोंट बी एबल टू मैनेज माय डे टू डे ऑपरेशंस. यस. एंड सिमिलरली अगर मैंने 1 लाख रुपीस वो सारे वर्किंग कैपिटल में लगा दिए एंड फिक्स एसेट्स में नहीं लगाए, तो मैं वर्क नहीं कर पाऊंगी. आई वोंट बी एबल टू बाय मशीनरी एंड स्टफ. ठीक है. सो आई हैव टू फाइंड आउट अ वे आउट, ताकि दोनों में बैलेंस रहे, कि मैं अप्रोप्रिएट फिक्स एसेट्स में भी इन्वेस्टमेंट कर पाऊँ एंड अप्रोप्रिएट वर्किंग कैपिटल में भी इन्वेस्टमेंट कर पाऊँ. ठीक है. सो there are issues relating to both of it. Let's say agar if I am investing in fixed assets, so you have to be really careful because the cash outlay, that is the point number 1, cash outlay is very huge. अगर आप कोई भी मशीनरी बाय करने जाते हो, ठीक है, सो आपको टोटल कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ता है. 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, इट कैन गो अप टू 1 करोड़, 2 करोड़, वॉट एवर द अमाउंट कैन बी. ठीक है. तो फिक्स एसेट्स में जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो कैश outlay is always very huge. So you have to like take the decisions, um, like keeping in mind all the things which can go wrong. ठीक है. And generally these decisions are irreversible. सपोज आपने कोई मशीनरी बाय कर ली, उसके बाद आपको लगा नहीं यार ये तो मैंने गलत मशीनरी बाय कर ली, क्या आप सेम कॉस्ट पे उस मशीनरी को सेल आउट कर पाओगे? नो, बिकॉज उस पर डेप्रिसिएशन लग जाएगा एंड वो सेकेंड हैंड मशीनरी हो जाएगी. ऑब्वियसली आपको जो उसका प्राइस मिलेगा वो कम मिलेगा दैन दी प्राइस जिस पे आपने बाय किया था. ठीक है. तो जनरली वट एवर इन्वेस्टमेंट यू आर मेकिंग इन फिक्स एसेट्स, you have to be assured of it because first of all the cash outlay is very large. Second, these decisions are generally irreversible, कि आपने एक बार डिसीजन ले लिया तो इसको चेंज करना डिफिकल्ट हो जाता है, let's say down the line in 2-3 years. Also it impacts the profitability. For example, आपने एक मशीनरी बाय करी which you thought would result in an increase in productivity, but ऐसा नहीं हुआ. उसकी मे बी कैरिंग ऑन कॉस्ट इतनी ज्यादा हो गई कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट आ रहा है. ठीक है. तो फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले यू हैव टू थिंक अ लॉट अबाउट व्हाट कैन गो रॉन्ग, बिकॉज कैश आउटले का बेटा मतलब होता है कि व्हाट एवर आई एम स्पेंडिंग ऑन इट, पैसा, यू कैन say in a layman language, cash outflow. ठीक है. So fixed assets में cash outflow बहुत ज्यादा है. Generally these decisions are irreversible and it impacts the profitability of the company if such decisions are taken in a wrong way. ठीक है.
तनिष्का बचे इरिवर्सिबल एज इन सपोज आपने एक मशीनरी बाय की, ठीक है, एंड डाउन द लाइन इन 2 years यू रियलाइज कि नहीं, आई शुड हैव बॉट मशीनरी बी इंस्टेड ऑफ मशीनरी ए, ठीक है। सो अगर आप मार्केट में वापस जाते हो और आप ट्राई करते हो कि मशीनरी ए को मैं सेल आउट करके मशीनरी बी बाय कर लूं, तो आपको क्या उसी सेम कॉस्ट मिलेगी वापस से? वुड यू बी एबल टू रिकवर वट एवर यू स्पेंट ऑन मशीनरी ए? नो, बिकॉज इट हैज ऑलरेडी बीन 2 years, उसमें डेप्रिसिएशन लग चुका है, वो सेकेंड हैंड मशीनरी हो चुकी है, आपको उसका उतना पैसा नहीं मिलेगा जिस कॉस्ट पे आपने बाय किया था, ठीक है। सो जनरली एक बार अगर ऐसे डिसीजंस ले लिए जाते हैं, इनको रिवर्स कर पाना डिफिकल्ट होता है। हाँ। बाकी जहाँ चीजें करना कर और ये क्या है? अंडरस्टूड? आपका घी। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द वर्किंग कैपिटल एसेट डिसीजंस। सो यहाँ पे भी दो कॉन्फ्लिक्टिंग इश्यूज है हमारे। सो अगर आपने वर्किंग कैपिटल एसेट्स ज्यादा मेंटेन किए, लेट्स से आपने ज्यादा फंड्स मेंटेन कर लिए, ठीक है, सो वो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट करेगा। लेट्स से कि हमें लगा कि 50,000 के डे टू डे ऑपरेशंस मैनेज करने के लिए मुझे फंड्स चाहिए होते हैं फॉर अ मंथ, बट आई वॉज बीइंग वेरी पेसिमिस्ट और मैंने सोचा कि 50,000 की जगह मैं 1 लाख का फंड मेंटेन कर लेती हूँ, जबकि मेरा 50,000 से वो काम हो सकता था, फिर भी मैंने उसकी जगह 1 लाख का फंड मेंटेन किया। So what I am doing is I am impacting my profitability because over and above 50,000 जो भी मैं एक्स्ट्रा फंड मेंटेन कर रही हूँ, अगर वो मैं लेट्स से कोई बैंक में डिपॉजिट कर देती या फिर किसी और चीज में इन्वेस्ट कर देती, तो उससे मुझे इंटरेस्ट मिल रहा होता, मुझे कोई रेवेन्यू अर्न हो रहा होता, जो कि अभी नहीं हो रहा, जस्ट बिकॉज आई हैव मेंटेन्ड एन एक्स्ट्रा फंड। सो दिस इज इम्पैक्टिंग माई प्रॉफिटेबिलिटी, राइट? सो हम ज्यादा फंड भी मेंटेन नहीं कर सकते और insufficient funds भी मेंटेन नहीं कर सकते। Why? Because let's say same example, हमने 50,000 का फंड मेंटेन किया था, और हमारे एक्सपेंसेस लेट्स से 60,000 के हो गए, ठीक है। सो इट वुड रिजल्ट इन इंसॉल्वेंसी बिकॉज मैंने 60,000 मेंटेन करना चाहिए था, 50,000 किया, उसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हुई एंड आई वॉज नॉट एबल टू मीट माई डेटर्स, ठीक है। So it can result in the insolvency of the firm. So whenever you are maintaining working capital asset, you have to keep in mind that वो excess में भी नहीं होने चाहिए, surplus में भी नहीं होना चाहिए, because it would impact the profitability of the company, and it should not be in the deficit also because it would result in the insolvency of the firm because you won't be able to meet your debtors. Is it okay? Investment decisions समझ में आए? Is there any student जिसको कोई भी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम है? बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसी पे पूरा आपके आने वाले चैप्टर्स बेस्ड होंगे, ठीक है। मूविंग ऑन टू द फाइनेंसिंग डिसीजन। ओके साहिल, बच्चे सेकंड पॉइंट क्या नहीं समझ में आया? कैन यू राइट इट डाउन? वर्किंग कैपिटल का, ओके, आई रिपीट इट अगेन। वर्किंग कैपिटल क्या होती है? द फंड्स व्हिच आर नीडेड टू मेंटेन द डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द फर्म, ठीक है, कि कुछ रिपेयर्स का काम हो रहा है, वेजेस देनी है, कोई भी कुछ भी छोटा मोटा जो भी हम लोग को डे टू डे ऑपरेशंस मेंटेन करने के लिए फंड्स चाहिए, दैट आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल, ठीक है। अब वर्किंग कैपिटल ज्यादा भी नहीं हमें मेंटेन करना है और कम भी मेंटेन नहीं करना है। क्यों? लेट्स से हमें 50,000 की नीड थी, 50,000 की जगह लेट्स से 60,000 की नीड थी, ठीक है। 60,000 की जगह हमने फंड्स अपने पास रखे 1 लाख के। मेरा काम 60,000 में हो सकता था, बट इंस्टेड आई मेंटेन्ड अ फंड ऑफ 1 लाख रुपीज, ठीक है। तो हाउ इज इट इम्पैक्टिंग माई प्रॉफिटेबिलिटी? वाई? बिकॉज जो 40,000 का मैंने एक्सेस फंड रेज किया, 40,000 कहाँ से आया? 1 लाख मैंने मेंटेन किया था, 60,000 की नीड थी, बैलेंसिंग 40,000 एक्स्ट्रा था ना, सरप्लस था जो मुझे मेंटेन, मैंने ओवर एंड अबव किया है ऑफ माई एक्सपेंसेस, राइट।
जो 40,000 का मैंने सरप्लस फंड मेंटेन किया है, अगर मैं लेट्स से वो किसी और चीज में इन्वेस्ट कर देती या फिर बैंक में ही डाल देती, मुझे कुछ उस पे इंटरेस्ट तो मिलता, ठीक है। आई कुड हैव अर्नड अ रेवेन्यू फ्रॉम दैट 40,000 रुपीज, यस और नो? अगर वो मैं 40,000 का एक्स्ट्रा फंड मेंटेन ना करके मैं किसी बैंक में डिपॉजिट कर देती, तो मैं रेवेन्यू अर्न करती कुछ तो। So what I am doing is I am foregoing my profits which I could have earned if I would have deposited that 40,000 in the bank, or would I have invested that 40,000 in a project. So this is how it is impacting my profitability, because I have maintained a surplus fund of 40,000 over and above my normal expenses of 60,000 rupees. Okay. And अगर मैं funds जितने नीडेड है उससे कम मेंटेन करूंगी, ठीक है। लेट्स से 60,000 के फंड्स चाहिए थे मुझे और मैंने 60,000 का ही मेंटेन किया फंड, राइट। और मेरे एक्सपेंसेस आ गए 70,000। कुछ ना कुछ हो ही जाता है कब बिजनेसेस में कि रिपेयर्स का काम ज्यादा होना था, 60,000 की जगह 70,000 लग गए। सो अगर हम ये चीज बार बार सर्कल में देखें, so can it result into the insolvency of the company? Yes, it would, because I was not able to pay to my debtors, जिनसे मैंने पैसा उधार लिया है, जो मेरा काम कर रहे हैं। जब मैं उनको पैसा नहीं दे पा रहा हूँ, उनकी वेजेस नहीं दे पा रहा, सैलरी नहीं दे पा रही, तो would it result in my insolvency? Yes. So हम लोग अपने वर्किंग कैपिटल हमें ऐसे मेंटेन करनी है कि एक्सेस, हम लोग बहुत ज्यादा एक्सेस फंड्स भी मेंटेन ना करें और बहुत ज्यादा डेफिसिट में भी ना मेंटेन करें, ठीक है। अगर सरप्लस होंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट हो जाएगी, एंड अगर बहुत ज्यादा डेफिसिट में होंगे तो इट वुड रिजल्ट इन द इंसॉल्वेंसी ऑफ द कंपनी। अंडरस्टूड? आई एम गिविंग यू अ वेरी बेसिक एग्जांपल। ऑब्वियसली एक रिपेयर्स के काम से इंसॉल्वेंसी नहीं हो सकती, बट इफ यू like take it in a bigger picture, you will understand it कि अगर मैं अपने डे टू डे क्रेडिटर्स वगैरह को मीट नहीं कर पा रही हूँ, it would result in the insolvency, ठीक है। I hope it should be clear to everyone now. Okay, coming on to the financing decisions, ठीक है। फाइनेंसिंग का मतलब है कि हमें अपने फाइनेंसेस कहाँ से रेज करने हैं, कैसे फाइनेंस करना है अपने प्रोजेक्ट्स को या फिर एसेट्स को, ठीक है। अब फाइनेंसिंग डिसीजंस में दो टाइप के डिसीजंस लिए जाते हैं, दैट whether you want to raise your funds through debt या फिर इक्विटी या फिर a mix of both. Why? Because दोनों के अपने अपनी pros and cons हैं. Debt is a cheaper source of finance, we all know that, but it has a fixed financial charge, ठीक है। irrespective कि आपको प्रॉफिट्स हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं, आपको वो फाइनेंशियल चार्ज देना ही पड़ेगा, वो एक इंटरेस्ट रेट देना ही पड़ेगा। लेट्स से आपने 9% डिबेंचर्स इशू किए थे, ठीक है। लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया, आपके पास फंड्स आ गए, आपको जो नेक्स्ट ईयर आया, फाइनेंशियल ईयर था, आपको उस ईयर में लॉसेस हो गए, ठीक है। लॉसेस वुड नॉट मीन कि आप वो 9% डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट नहीं दोगे, इररिस्पेक्टिव कि कंपनी में प्रॉफिट्स हुए या लॉसेस हुए, आपको डिबेंचर होल्डर्स को 9% का इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, ठीक है। दो इट्स अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस, बट इट इंटेल्स अ फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्ज दैट द कंपनी हैज टू बियर, irrespective whether it is having profits or incurring losses, right? And if we raise finances through equity by using our own money, ठीक है, दो इसमें कोई फाइनेंशियल चार्ज नहीं है कि अगर कंपनी में लॉसेस हुए तो आई नीड नॉट टू पे एनी पर्टिकुलर सम टू माय इक्विटी होल्डर्स, बट इट वुड लीड टू डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल। हाउ? लेट्स से मेरे पास जितने पैसे थे मैंने कंपनी में ऑलरेडी लगा दिए, मुझे किसी से डेट नहीं लेना है, तो मैंने क्या किया, मैंने अपने एक साथ अपनी कंपनी में एक और पार्टनर बना लिया या फिर 4-5 पार्टनर बना लिए, ठीक है। अब 4-5 पार्टनर बनाने से क्या होगा, जो
पूरा 100% कंट्रोल मेरे पास था। अब 5 पार्टनर्स की वजह से मेरा 100% कंट्रोल 20% कंट्रोल में शिफ्ट हो गया। जहाँ पे मेरे पास 100% राइट थी, अब वो मेरे पास कितनी राइट रह गई? सिर्फ 20% की। I'm giving you a very broad example. Yes or no? Yes ना? So इक्विटी में ये प्रॉब्लम होती है that if you raise excess equity it would lead to dilution of control। या फिर अगर एक ही बंदा पैसा लगा रहा है, like for example आपने जब कंपनी स्टार्ट करी थी there were 5 people, 4 लोगों ने अपना उनके पास जितना मनी था उन्होंने डाइल्यूट कर दिया, उनके पास कुछ भी नहीं अब बचा है, ठीक है, फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए। एंड देयर वाज अ पर्सन ए जिसके पास स्टिल ही हैड फंड्स। अगर वो ही इन्वेस्ट करता रहेगा सो उसका जो स्टेक है इन द कंपनी दैट वुड राइज और लोगों का कम हो जाएगा। सो इट वुड गिव एब्सोल्यूट पावर टू ओनली वन पर्सन, इररिस्पेक्टिव जो पहले लोगों में इक्वली शेयर हो रही थी, ठीक है। सो इक्विटी से क्या होता है, कंट्रोल में प्रॉब्लम्स होती है, इट वुड लीड टू डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल्स। एंड अगर आप डेट रेज करते हो तो इट रिजल्ट्स इन फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्ज। सो यू हैव टू फाइंड आउट अ मिडिल वे सो दैट वहाँ पे अप्रोप्रिएट मिक्स ऑफ डेट हो एंड इक्विटी हो, सो दैट अगर लॉसेस हो तब भी आप फाइनेंशियल चार्ज दे पाओ और आपका कंट्रोल भी इतना ज्यादा डाइल्यूट ना हो। So there has to be a mix of both the equity and debt. Is it clear? Okay, I got a question. शिवम, डिविडेंड देना कंपनी के लिए कंपलसरी नहीं होता। डिविडेंड तभी दिया जाता है जब लेट्स से कंपनी प्रॉफिट्स में हो, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस पे अग्री करे कि यस दिस ईयर वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड्स। It is not compulsory that the companies have to distribute dividends irrespective कि उनको losses हो रहे हैं profits। This is not the case with the dividends। Whereas अगर आप debt में investment कर रहे हो तो आपको एक interest तो मिलेगा ही मिलेगा irrespective कि company profits में है या losses में। Is that okay? Is that okay, Shivam? Shivam, okay। तभी कंपनीज डाइल्यूट होती है ना, लिक्विडेट कर देते हैं कंपनीज को, इंसॉल्वेंसी आ जाती है, बैंकरप्ट हो जाते हैं। दैट इज हाउ कंपनी बैंकरप्ट होती है बच्चे। अगर उनके पास रिजर्व्स नहीं बचे हैं तो लेट्स से उन्होंने डेट रेज किया था एंड दे आर नॉट एबल टू पे ऑफ देयर डेटर्स, ठीक है, उनके पास इतने रिजर्व्स नहीं है, वो बैंक के पास जाएंगे और अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर करेंगे एंड उनकी एसेट्स पे सेल ऑफ करके डेट होल्डर्स को रीइंबर्स किया जाएगा। बच्चे लेट्स सी देयर वाज अ कंपनी, ठीक है, एंड ओके, सो देयर वाज अ कंपनी, बैंकरप्ट हो गई, वो बैंक के पास गई टू डिक्लेयर इंसॉल्वेंसी। तो बैंक क्या करेगी, बैंक उसके बिहाफ पे उसके एसेट्स वगैरह सेल आउट करेगी, ठीक है, एंड जितना भी पैसा होगा सबसे पहले वो डेट होल्डर्स को रीइंबर्स करेंगे, ठीक है, जितने भी पोर्शन में होता है। अगर सफिशिएंट फंड्स होंगे तो सबको मिल जाएंगे और अगर इनसफिशिएंट फंड्स होंगे तो कुछ पार्ट ऑफ द इंटरेस्ट उन लोगों को मिल जाएगा, ठीक है, डिपेंडिंग उनके पास कितने एसेट्स थे। एंड बिफोर यू गो विद द इशू ऑफ डिबेंचर्स, कंपनीज को बैंक से ये करवाना भी पड़ता है कि वेदर दे हैव सफिशिएंट एसेट्स टू इशू द डेट्स और नॉट, ठीक है। बैंक्स और
ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस कभी भी कंपनीज को विदाउट एसेट्स डिबेंचर्स इशू करने भी नहीं दी थी. सो यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड ऑफ इट आल्सो. इज इट ओके? कुछ भी, it can be any permutations and combination. Okay, Devashish, okay. No, Shivam, it's not set by a bank. वो उसके वैल्यूएशन पे डिपेंड करेगा. एसेट्स को वैल्यूएट करेंगे कि कंपनी के पास 5 एसेट्स से उनकी वैल्यूएशन हुई. वैल्यूएशन से हमें पता चला कि चलो उनके पास 1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी. ठीक है, और उनको 1 करोड़ रुपए ही देने हैं डिबेंचर होल्डर्स को. तो सबके हिस्से कितना कितना आया? 1 रुपया आया. ठीक है. परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस हमेशा आपके वैल्यूएशन पे बेस्ड होंगे कि एसेट्स को वैल्यूएशन कितना हो रहा है और उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं. सबसे फर्स्ट मोटिव होता है अपने डेट्स को क्लियर करना. अगर पैसा बचता है तो इक्विटी को दिया जाता है, अदरवाइज सारे फंड्स पहले मीट ऑफ करते हैं लायबिलिटी ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स. गॉट इट? ग्रेट. देवाशीष, आपको क्या नहीं समझ में आया? You were talking about equity. ओके, डेट समझ में आ गया कि फिक्स फाइनेंशियल चार्ज होता है. इक्विटी में क्या होता है? वी हैव वोटिंग राइट्स, राइट? कंपनी के ओनर्स होते हैं इक्विटी होल्डर्स. उनका खुद का पैसा होता है. दे हैव देयर वोटिंग राइट्स. बेसिकली दीज आर द पीपल हु रन द कंपनी. Yes, through the board of directors or whatsoever. So let's say if I was a single person running the entire company, ठीक है, तो I had 100% voting rights. जो भी काम करना था उस पे सारी पावर सिर्फ मेरी थी. ठीक है, बट लेट्स से एक क्वार्टर में मुझे बहुत ज्यादा लॉसेस हो गए एंड मैं अपने आप फंड्स रेज नहीं कर पा रही हूँ एंड मैं डेट नहीं लेना चाह रही. मेरे पास जितनी भी बैकिंग अप थी वो सारी खत्म हो चुकी है. आई जस्ट हैव अनदर ऑप्शन कि मुझे अब 4 शेयर होल्डर्स और लाने पड़ेंगे, 4 इक्विटी होल्डर्स और लाने पड़ेंगे. 4 लोगों को और ओनर बनाना पड़ेगा. ठीक है, तो अब इंस्टेड ऑफ 1 person आई हैव टोटल 5 इक्विटी होल्डर्स इन दी कंपनी. ठीक है, तो पहले जहां पे मेरे पास 100% वोटिंग राइट्स थे, अब मेरे पास वोटिंग राइट्स कितने बचे? 20% ना. अब क्योंकि वो 100% वोटिंग राइट्स कितनों में शेयर हो रहे हैं? 5 लोगों में शेयर हो रहे हैं, राइट? हमने सबने इक्वल पैसा लगाया है कंपनी में, तो सबके पास इक्वल वोटिंग राइट्स आ गए. तो 100% से मेरा वोटिंग राइट कितना कम हो गया? 20% पे आ गया. सो पहले जहाँ पे मैं 100% एक्सरसाइज कर सकती थी अपना कंट्रोल, अब सिर्फ मैं 20% कंट्रोल एक्सरसाइज कर रही हूँ. सो इट हैड लेड टू डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल फॉर मी. यस देवाशीष, इक्विटी होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स होती हैं. डिपेंडिंग अपॉन आपके पास कितने इक्विटी शेयर्स है. तुम्हारा वो पीरियड नहीं है तो लैपटॉप क्यों ऑन कर रखा है? अंडरस्टूड. फाइनेंसिंग डिसीजन सबको समझ में आ गए? अगली क्लास इज इट क्लियर? अभी तो ये जो ले चल रही है. I need yeses from everybody. मैं देखूंगा अभी. नहीं, मैंने जब अभी तक जितना 15-20 आधे घंटे का देख लिया ना, Great. मैं समझ गया हूँ. आगे वो मैम कुछ और समझा रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा. The next and the last decision is dividend decision. That how much dividend is to be provided to our equity holders. अगर हमें profits हो रहे हैं
and if the company wants to declare profits, ठीक है, तो कितने डिविडेंड्स देने हैं ये भी डिसाइड करना पड़ेगा. So I am just giving you an idea. Imagine a company XYZ, उसको इस क्वार्टर में बहुत ज्यादा, इस ईयर फाइनेंशियल ईयर में बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स हुए, एंड द कंपनी थॉट ऑफ गिविंग प्रॉफिट्स टू द डिस्ट्रीब्यूटिंग और शेयरिंग द प्रॉफिट्स विद द इक्विटी होल्डर्स आल्सो. ठीक है, अब कितने डिविडेंड्स देने होंगे ये कैसे डिसाइड करेंगे? ये डिसाइड करेंगे ऑन द बेसिस कि आपके पास फ्यूचर में कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आने वाली है या नहीं आने वाली है. ठीक है, देखते हैं अभी. सो इसके कंसिडरेशंस क्या है कि आपको कंपनी में कितनी लिक्विडिटी मेंटेन करनी है. इफ यू थिंक दैट हम लोग को 50% लिक्विडिटी मेंटेन करनी है और जो 50% हमें प्रॉफिट्स है वी कैन डिस्ट्रीब्यूट एज डिविडेंड्स. ठीक है, दिस इज वन वे ऑफ डिसाइडिंग, डिपेंडिंग कि आपको कंपनी में लिक्विडिटी कितनी मेंटेन करनी है. सेकेंड इज ग्रोथ. अगर आपको लगता है कि इन द नियर फ्यूचर आपके पास कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आने वाला है, तो व्हाट यू आर गोना डू इज यू आर गोना प्लॉ बैक योर प्रॉफिट्स, दैट इज कॉल्ड रिटेन्ड अर्निंग्स. ठीक है, कि आपने लोगों में पैसे डिस्ट्रीब्यूट ना करके इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स आपने वो प्रॉफिट्स रिटेन कर लिए, सो दैट मैं अगले साल उस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट कर पाऊं जहां से मुझे ग्रोथ मिलेगी. ठीक है, कि मैंने डिविडेंड्स डिक्लेयर ना करके आई हैव यूज्ड दैट मनी टू इन्वेस्ट इट फर्दर इनटू एन प्रॉफिटेबल एवेन्यू. ठीक है, दिस इज अनदर वे ऑफ डिसाइडिंग वेदर यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट्स डिविडेंड्स और you have to like plow back the earnings. The third decision can be investors' expectations. कई बार कंपनीज इतनी पुरानी हो जाती है या फिर उनका इतना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होता है ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड्स कि अगर आप एक साल डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे तो द इन्वेस्टर कैन हैव दैट परसेप्शन कि मे बी द कंपनी इज गोइंग इनटू लॉसेस, दैट इज व्हाई उन्होंने इस साल का डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया. ठीक है, सो अगर इन्वेस्टर की ये सारी एक्सपेक्टेशंस हैं so it would be really like beneficial for the company if it gives dividend to the shareholders. ठीक है, so depending कि उन investor की expectations क्या है, you would take dividend distribution decision. And the last is legal restrictions. If कुछ legally required है कंपनी की तरफ से कि वो इतने साल तक dividend distribute नहीं कर सकते या फिर उनको इतना certain amount dividend distribute करना है, so this is another way of deciding कि dividend distribute हमें इस साल करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए. So these are the 4 considerations you have to keep in mind before you distribute dividends to the shareholders. The first is liquidity, whether you want to maintain funds in the company or not. Second is growth, that whether you have an investment opportunity coming your way in the near future. Third is whether the investors are expecting a certain kind of dividend or not. And the fourth are legal restrictions. Is the company legally bound to not declare dividends right now or not? Is it okay? Understood? बच्चे ऐसा नहीं होता कि एक साल हमने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया तो हम अगले साल डबल डिविडेंड देंगे. इट इंटायरली डिपेंड्स अपॉन द कंपनी कि वो नेक्स्ट ईयर भी कितना डिविडेंड देने वाले हैं. डिविडेंड देना किसी कंपनी के लिए कंपल्शन नहीं होता. Let's say the company is a new company. ठीक है, सो लीगली रिक्वायर्ड होता है कि वो इतने टाइम पीरियड तक डिविडेंड नहीं डिक्लेयर कर सकती, या फिर अगर वो डिक्लेयर कर रही है तो वो आउट ऑफ व्हाट फंड्स वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है. इफ यू रिमेम्बर हमने ये 76, 77, 78 ऑफ द कंपनीज एक्ट में ये डिस्क्राइब्ड होता है पूरा. मुझे एग्जैक्टली सेक्शंस नहीं याद आ रहे, बट आई थिंक ये 70s में ही कोई सेक्शंस होते हैं, उनके बेसिस पे ही आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हो कि out of these funds only dividends can be distributed. So what are the legal requirements for the distribution you have to keep in mind?
Clear to everyone? Great. आज के लिए बस इतना करें. Do you want me to continue? Great. I'm sharing the attendance link. You have 2 minutes to mark your attendance. Please do that fast.